Okay, so very good morning to all. And so today we are going uh, to talk about the posture correction. बहुत बार हो चुका है ये सिस्टम एंड डेफिनेटली कुछ नई एक्सरसाइज पे मैं ध्यान देता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू. तो आप उससे अच्छे से अच्छे करके लाइक यू कैन अचीव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज. So what is the best for you? Okay, so अगर मैं posture की बात करूं तो posture means your spine and posture means your lower body, means your leg. तो डेफिनेटली हम स्पाइन पे ही ध्यान देते हैं. स्पाइन मीन्स जो हमारा नॉर्मल कर्वेचर होता है स्पाइन का, वो बिकॉज ऑफ द एज, because of our habit, too much of sitting and laptop use, mobile use, all those things उस normal curvature को वो disturb कर देता है. And then we can say कि हाँ उसका posture is not okay, not good. So if your posture is not good, तो आपको बहुत सारी symptoms आ सकते हैं. Such like pain, and you may feel fatigue also because of the posture, thakawat, tiredness, and most of the time pain is the main concern. Our neck, your back is painful. So painful is because of your posture is not good, your spine is not aligned. Okay, so let's start today's session to how to correct your spine. That's the simple thing कि आप अपनी spine का जो curvature है आप उसको कैसे वापस करेंगे, and what is the different exercise you can do safely at home to improve your posture. Okay, बहुत ज़्यादा ऐसी exercise नहीं होनी चाहिए कि you can get strained, आपको फिर से सोनेस हो जाए या पेन हो जाए. Okay, so let's start with the warm up a little bit, then we go for exercise. So for the warm up, just stretch your upper body, interlock your fingers, stretch up, and then down. Again, go up, stretch. So you feel a stretch in your upper body, front side and the back side. And then back. Again, last one. Go up, stretch. And then back. Now, हाथ को यहाँ पे रखिए, back side of your head, and move right side and the left side. Just do it slowly. Okay, now move your shoulder. Move like clockwise and anti-clockwise. And anti-clock. Okay. So a little bit information about posture again. हमारे बॉडी के क्या ऐसे सिम्टम्स, क्या ऐसे सिस्टम है, नॉट द सिम्टम, क्या ऐसे सिस्टम है जो कि हमारे पोस्चर को मेंटेन रखते हैं. तो सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सो सपोज मस्कुलर सिस्टम मतलब मसल्स की जो इम्पोर्टेंस है,
मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, that one influence your posture. So your muscular system, your nervous system. Nervous system means your brain, your spinal cord, your spinal nerve. This is your nervous system. So your muscular system, your nervous system, your eyes is also influence your body alignment. अगर मैं posture की बात करूँ, so body posture, your eyes. So certain exercise of your eyes will improve your posture and the movement of your head, right, left, up and down. Okay. So मैं इन चारों को मिक्स करके आपको एक्सरसाइज बताने वाला कि हाउ टू like 2 or 3 exercise, one of all from the muscular, from the nervous system, from the eyes and from your head, कि आप उन चारों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं to improve your posture. Okay, so let's start the first one. So अगर मैं posture की बात करूँ, so suppose like this one, okay, rounded. So इसको improve करने के लिए your head is also coming like this, नीचे की तरफ. Okay, so you are not able to lift your head up and your body. Okay, so the exercise is to improve this one. Just interlock your fingers और इसको आपको fingers को अपने देखते रहना, हाथ को अपने देखते रहना. When you go up, so you can see कि your head and your body all is moving in one direction, means upward. And then come back. So this is the movement of your head also. अगर आपका posture ऐसा है तो आपका head भी ऊपर नहीं जाएगा. Okay. So with this exercise, you can improve your movement of your head and your spine. And then come back. Okay. So we are going to do this one for the 10 times. But अगर पीछे कुछ सपोर्ट है आपके, like support of the chair, so उससे आपको सपोर्ट नहीं लेना. Don't take support from the chair. ऐसे ही बैठना है and then move. अगर आप सपोर्ट लेंगे, so your muscles is not going to work. And do this one for the 10 times. Continuous focus on your hand. जब वो नीचे आ रहा तो भी फोकस करना है. Go up and stay up. Elbow straight. Elbow straight. Breathing pattern. Breathing pattern you can do with a breathe in and breathe out. So breathe in के साथ आप ऊपर जा सकते हैं, breathe in के साथ down. Take times and take rest. Continuous focus on your hand. हाथ की तरफ देखते रहना है जब आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे. And elbow straight. Keep your elbow straight. Don't take any support from the chair or anything. Very good. 10 times and take rest.
विजय सर, ऊपर देखना है आपको, हाथ की तरफ। वेरी गुड। एल्बो स्ट्रेट एंड डाउन। Good. Okay. Now move to the next one. Next one, same exercise with standing. इसको खड़े होके करेंगे, लेकिन इसका एक प्रॉपर टेक्निक है करने का। Okay, so the technique is your starting position will be थोड़ा से बेंड करके with your knee bent. Okay, so same exercise हम करने वाले हैं, but standing and knee bend. Slide, बहुत थोड़ा से, बहुत ज्यादा नहीं, इतना नहीं करना, थोड़ा से, बस इतना. Again, interlock your fingers, knee bend करके खड़े हो जाना. And interlock your fingers. When you go up, okay, फिर से इसको मूवमेंट स्टार्ट करनी है. So when you move up, go up, straight your spine and your knee, and then come back. So आपको नी भी स्ट्रेट करना है, नी पे भी मूवमेंट करना है. When you go up and then down, again knee bend करके खड़े होना है. Interlock your fingers, go up with straight your knee and then down with bend your knee. उसके बाद बेंड कर लेना अपने नी को. Again go up, हाथ को देखते रहना and down. So breathe in, go up, breathe out, go down. Breathe in, go up, breathe out, go down. ऊपर हाथ को देखते रहना आपने. Focus on your hand. Elbow straight. बहुत लोगों की अगर elbow bend है, that's mean कि उनकी जो muscles हैं from the shoulder and your upper body is tight, वो stiff हैं. Because of that, आपका जो movement है वो proper नहीं हो पा रहा है. Focus on the hand. Knee straight, go up. When you go down, जब आप नीचे की तरफ आइए, आप अपने नी को भी बेंड करिए. Ten times and take rest. Ten times and take rest. Very good. घुटने मुड़े रहेंगे पूरे टाइम, नीचे ऊपर करने के टाइम? हाँ, ऊपर जब आप करेंगे तो सीधा हो जाएगा. अच्छा. जब आप फिर से नीचे आएंगे तो उसको फिर से बेंड कर लेना. अच्छा, थैंक यू. ओके. Ten times and take rest. Okay, so this is for your which posture? This one. अगर आपको इसको improve करना है
then you can do this one. Okay, now there are different types of posture correction. Means कि अगर आपका posture ऐसा है तो what is the exercise? If your posture is like this, means एक shoulder ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है, like that. Okay, so इसमें कौन सी exercise आप कर सकते हैं? So the exercise is ये हम पहले बैठ कर करेंगे, then इसको हम खड़े होकर करेंगे. Suppose your posture is like this. This one is up, this one is down. Okay. So to improve this one, move this hand ऊपर की तरफ like this and this one down. Again, यहाँ पे देखिए. Suppose you are like this, so this hand go up and this one down. And just stretch your body from this side. So इस हाथ से आपको नीचे की तरफ फोर्स लगाना है और इस हाथ से ऊपर की तरफ. Stretch, hold for 10 count and then down. Okay, again go up, stretch up, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and down. Okay, अब आप इसमें एक मूवमेंट भी कर सकते हैं, the movement of your head. So continuous, look at your hand, go up, then you can hold and down. Again, go up, hold for 10 seconds and down. So 5 times on your right side and 5 on your left side. तो दोनों तरफ हम करेंगे. Again, change your head, change your hand, look up, stay up for 10 count. And down. Again. So you can do with breathe in and breathe out also. So breathe in के साथ go up and breathe out के साथ go down. Continuous focus on your hand. Just focus on your hand. एक हाथ को ऊपर की तरफ means आपको फोर्स लगाना है ऊपर की तरफ. Just stretch up and this one stretch down so that you can align your body. So 5 times on your right side and 5 on your left. Then इसी को हम सेम करेंगे with standing. तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए then with the standing. So standing में हम इसको करेंगे 3 times only. एक हाथ को नीचे की तरफ, एक को ऊपर with standing and हाथ को देखते रहना ऊपर की तरफ. Just stretch your body so you feel stretch on this side and then down. Only 3 times on each hand. सिर्फ 3 बार करेंगे. Again go up, stay here and down. Last. And
and down. Okay, now move to the next one. Again, change your hand. Go up, stay there, and down. 1. So 3 times on this side. Elbow straight and focus on your hand. Down. And then again up. And down. Now take rest. So do 3 and then take rest. Okay, now move to the next one. So the next one is if your posture is not good और वो बहुत सालों तक ऐसी रहा, suppose like this one. So slowly what happen कि आपकी जो spine है वो धीरे धीरे करके stiff हो जाएगी. So I have a model here. So this is the spine. Okay. So what happened? You can see here. This is the spine. Okay. So what happened कि suppose अगर आपका posture ये आगे की तरफ है, like this one. This is the head. This is your hip bone, hip joint. Okay. So this is the normal curvature, and your posture is like this. आगे की तरफ ऐसा है और बहुत सालों तक है. So you can see here ये जो छोटे छोटे joints हैं, so these joints get fused, ये stiff हो जाते हैं. So to open up this one is very important. So open up करने के लिए इसमें exercise का होना बहुत जरूरी है. Okay, so exercise is like this one, rotation, all those things. ऊपर नीचे भी और अपने बॉडी को रोटेट करना. So this is all the exercise. So now the next one is कि आप अपने बॉडी को, not the body, but आप अपने स्पाइन को कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं अगर वो बहुत दिनों तक वो इसी एक ही पोस्चर में है तो, और उस पोस्चर की वजह से you feel pain or stiffness or the soreness in your muscles and the body. Okay, so the exercise is to rotate your spine. अब स्पाइन को कैसे हम रोटेट कर सकते हैं? Just maintain this posture. थोड़ा से वाइट फुट को रखना है, हल्का से वाइट, बहुत ज्यादा नहीं. हाथ को यहाँ पर ओपन अप, नी थोड़ा से बेंड, स्लाइड बेंड, नी को बिल्कुल हल्का से बेंड करिए और इसी पोस्चर में रुकना है आपने. And with the breathe in and breathe out के साथ just move your spine and your whole body to one side and then come back. So very simple exercise. Just rotate your spine. आप जितना उसको रोटेट करेंगे वो उतना फ्लेक्सिबल बनेगा. अगेन जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जस्ट चेक, आप इसको एक बार नी को बेंड करके करिए एंड देन चेक योर फ्लेक्सिबिलिटी. नी स्ट्रेट करके करिए, देन चेक योर फ्लेक्सिबिलिटी. देयर विल बी डिफरेंस. आप नी जब स्ट्रेट करके करेंगे तो अपने बॉडी को बहुत ज्यादा रोटेट नहीं कर पाएंगे. जब आप नी बेंड करके करेंगे सो यू कैन फील कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा रोटेट हो रही है. Means your spine is rotating more.
Do it slowly 10 times. 5 on this side and 5 on this side. With knee bent. Knee को थोड़ा से bend करके. Do 10 times and take rest. Do it slowly. बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है. जितना आप स्लो कर सकते हैं उतना अच्छा है. 10 times और टेक रेस्ट. आराम से बैठ जाइए एंड थोड़ा से आराम करिए. टेक रेस्ट. एवरीवन टेक रेस्ट. बहुत ज्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करनी वरना चक्कर आ जाएंगे. Okay, now move to next one. So the spine का movement is very important. अगर वो stiff है तो उसको flexible करना is your job. Okay. So I'm going to teach you certain more exercise कि आप उसको कैसे और flexible बना सकते हैं. So you need a bed and sit down like this. सभी लोग ऐसे बैठ सकते हैं ना, like this one. Okay. अब इसमें करना क्या है आपको कि you have to rotate your leg to one side like this one, right side, and your head to your left side. Again, leg एक तरफ और head दूसरी तरफ. And now change your direction. Leg को left तरफ and head on your right side. So right and left combination के साथ इसको करते रहना है. And you can see कि आपका ये ज़्यादा movement होगा ही नहीं. You only able to move this one. बहुत ही कम. Because of the stiffness only. And the stiffness on your spine. Okay. So move this side and this side. Again this one and this one. So you can feel कि आपका जो spine है वो बहुत ही अच्छे से move हो रहा है. And do it only 10 times. आप इसको नीचे बैठकर योगा मैट पे कर सकते हैं. And you can do on the bed. So do 10 times and take rest. Leg one side and head one side. तो लेट के भी तो किया जाता है. लेट के भी कर सकते हैं. लेट के भी कर सकते हैं बट लेट के दूसरी एक्सरसाइज है उसमें भी स्पाइन का जो फ्लेक्सिबिलिटी जो रोटेशन है वो इम्प्रूव होगा. बट दिस वन इज द डिफरेंट वन. लाइक अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी की तो इससे आप थोड़ी सी अच्छी सी गेन कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. डॉक्टर एक बार ये वाला रिपीट करके दिखा दीजिए प्लीज ये एक्सरसाइज. You have to sit like this. हाथ को ऐसे रख सकते हैं पीछे की तरफ and rotate your leg to one side and head one side. So right and left combination के साथ आपको ये करना है. So head and leg इसको एक साथ मूव करना है in opposite direction.
हेड एंड लेग दोनों को एक साथ इन अपोजिट डायरेक्शन. रंजना मैम स्लो स्लो स्लो. हाँ, और यू कैन होल्ड वन, जैसे आप रोटेट करें तो यू कैन होल्ड वन साइड. आप वहां पे रुक जाइए 2 और 3 सेकेंड्स के लिए, देन अगेन कम बैक. फील द स्ट्रेच इन योर स्पाइन. Good, everyone is doing good. So do 10 times and take rest. डॉक्टर साहब, इससे जो स्पाइन की फॉरवर्ड बेंडिंग है वो ठीक होएगी, जो आगे को थोड़ी कमर झुक जाती है, तो दैट विल बी करेक्टेड. बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करेगा मैम, बिकॉज हम इसमें स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं. और जब आपका स्पाइन आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है. तो फॉरवर्ड बेंडिंग विल बी करेक्टेड बिल्कुल. बाय दिस. ठीक. जो मैंने शुरू से एक्सरसाइज बताई है, ऑल एक्सरसाइज विल बी बेनिफिट. ये भी एड ऑन करेगा, लेकिन जो मैंने पहली 2-3 एक्सरसाइज बताई हैं, डेट वन इज गुड फॉर द फॉरवर्ड बेंडिंग. ठीक. ओके, सो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए वन मोर एक्सरसाइज यू कैन डू, एंड इट्स अ वेरी सिंपल. एंड सपोज आपका जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो आपके इस एरिया से आ रहा है, फ्रॉम हियर. सो व्हाट यू हैव टू डू, डॉक्टर लंबोसेक्रल में बेंडिंग है, लंबोसेक्रल रीजन में बेंडिंग. लंबोसेक्रल मींस यहाँ पर. यस यस. L4 L5. यस. ठीक है. ओके, सो जो मैं बताने वाला हूँ, दिस इज फॉर योर अपर बैक. अगर आप अपर बैक यहाँ से आगे की तरफ ऐसे झुके हुए हैं, ठीक. so it's a very simple exercise. Take a pillow और आपने लेट जाना इस पिलो पर, and your this part should be on your pillow, और हेड को ऐसे नीचे की तरफ. हाथ को, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए, and then focus on your hand and go back. Just stay here, breathe in and out. यहाँ पे रुक जाइए 10 or 20 seconds के लिए, and then come back. Again do it. Stay here. Stay here, and then come back. So do this one for the 5 to 10 times. It's up to you कि आप कितना कर सकते हैं. So पिलो को आपको जहां पे आपकी बेंडिंग है, जहां से वहां पे आपको लगाना है. हाथ को ऊपर की तरफ, आपको देखते रहना है हाथ को, and then come back. And do 5 times. Now the same exercise, अगर आपकी बेंडिंग लंबोसेक्रल से, जैसे अभी मैम ने बोला, अगर लंबोसेक्रल से, so again you can use this pillow over your this region, and then lie down like this. So ये पार्ट आपका थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा.
है ना, एंड जस्ट ओनली लाई डाउन लाइक दैट फॉर 30 seconds or 1 minute. और अगर आपको ठीक फील हो रहा है, so you can do 5 minutes also. इसमें आपको कुछ भी मूव नहीं करना है, just only lie down on your pillow. So this is the best exercise to improve your posture. Okay. Now move to the last one. इसको करना नहीं, इसको जस्ट मैंने भी ऐसे बताया है कि you can do. नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, हाँ, ठीक है. Now move to the last one. The last one, you need a wall. और वॉल पे आपको ऐसे खड़े होना है, बिल्कुल स्ट्रेट. Like this one. Okay. Your head, your back, your head is all touching to the wall. हाथ को ऊपर की तरफ and stay here. Stay here. Breathe in and out. Breathe in and out for at least 20 to 30 seconds. यहीं पे रुकना है आपने, and then come back. So इसको हम करने वाले for the 5 times. तो वॉल के अगेंस्ट आपको खड़े होना है. Your heel, आपकी जो heel है वो भी टच होनी चाहिए to the wall. Your heel, your back, your head, your upper back, all should be touching on the wall. Hand को ऊपर की तरफ. Stay here for 30 seconds and then come down. हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, पूरा हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे. हाँ, एल्बो आपकी बेंड हो रही होगी थोड़ी सी. जी, एल्बो बेंड हो रही है और लोअर बैक में बड़ा तेज दर्द हुआ, हमने तो रोक दिया. हाँ, ठीक है, अगर पेन हो रहा है तो रोक दीजिए. But this is a good exercise to improve your posture. If your posture is not good, so this one is a good one. और सामने देखना है. Don't look up, look straight. सामने की तरफ देखना है. And down. Very nice. Do 5 times and take rest. Do 5 times and take rest. Very good. Elbow straight. अगर elbow bend हो रहा है, that's mean कि आपकी जो spinal muscles हैं, जो muscles हैं आपकी back की या अपर बैक की, वो स्टिफ है. डू 5 टाइम्स एंड टेक रेस्ट. डॉक्टर इस एज में भी मेरा पोस्चर ठीक हो सकता है क्या? सॉरी, फिर से पूछिएगा. इस एज में भी पोस्चर ठीक हो सकता है हमारा, जो इतने सालों से आदत पड़ी कि ऐसे आराम से बैठने की, तो आप एकदम से ऐसे या कुछ थोड़ा थोड़ा करे तो कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एंड यू कैन इम्प्रूव योर पोस्चर. थैंक यू. बट उसके लिए आपको करना जरूरी है. क्योंकि मेरी तो बहुत आदत है ऐसे ऐसे बैठने, बड़ा मजा आता है ऐसे बैठने. मजा आता है. इससे थकावट और लगती है, जैसे स्टिफ हो गए कंधे. हाँ, ऐसे ये लगता है ऐसे शोल्डर स्टिफ हो. तो आप अगर करते रहेंगे, स्लोली यू कैन इम्प्रूव.
ऐसे ही बिता दो अब सब जो दिन रह गए ये ऐसे हो जाते हैं ना, हाँ। इससे गर्दन का पोस्चर भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ऑफ कोर्स इतना स्ट्रिक्ट होने से मास्टर तो हम लोग स्टूडेंट तो बस डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। इतना डिसिप्लिन नहीं बताओ। बट आई थिंक डिसिप्लिन इज गुड ना। लाइफ तो डिसिप्लिन है। थोड़ा तो छुटकारा इनडिसिप्लिन रहने की आदत पड़ गई। ओके वही ना। डॉक्टर, इज देयर एनी एविडेंस कि नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ कमर झुक जाती है? इज इट सो और नॉट? एम आई रॉन्ग? नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या कमर झुक जाती है या मतलब मेरी गलत फहमी है ऐसा? ओके, सो उनकी झुकेगी जिनको पहले से ही प्रॉब्लम होगी स्पाइन में और जिनकी बॉडी की जो मसल्स है वो वीक होंगी, तो उनके लिए पॉसिबल है। पहले तो नहीं अदरवाइज ऐसा कोई भी कोरिलेशन नहीं कि 100% की नी रिप्लेसमेंट वालों को जो कमर है वो झुक जाएगी। There is no अरे उम्र के ऊपर होता है भैया, उम्र अब हो गई बहुत, कुछ नहीं हो मेरी तो सकता। नहीं झुकी, मेरी नहीं झुकी। जो लोग शुरू मुझे लगा नी रिप्लेसमेंट के बाद लाइफ बहुत आसान हो गई। मोना तुम्हारी झुकी कि नहीं? लगाते रहते थे। नहीं हमारी नहीं झुकी। इसीलिए मस्ती आ रही है। और अगर डॉक्टर अनुराग अगर पोस्चर ठीक हो तो ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, तो ठीक है, डॉक्टर हम क्या राज- करें फिर? ओके वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड डॉक्टर क्वेश्चन। परवेज, डॉक्टर हाँ। परवेज आए हैं आज। ओके हाँ डॉक्टर परवेज, अगर पोस्चर हाँ। ठीक है तो ये बिल्कुल। एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल है। अगर आपको उसको लंबे दिनों तक या कुछ और सालों तक इम्प्रूव करके रखना है तो। ओके ओके, थैंक अदरवाइज यू। अगर आप नहीं करेंगे तो जी हाँ, उसमें यू हैव रिस्क ऑफ बेंडिंग पोस्चर, है ना। ओके ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। तो इतना ऐसा दिन नहीं में अगर कि नहीं हुआ अभी और नहीं होगा। इतना दिन में अगर नहीं हुआ जो करते आए और आगे नहीं होगा, दैट मीन्स करेक्ट था हम लोगों का, है ना, तो नहीं हुआ। तो एक्सरसाइज इज मेड अप फॉर टू इम्प्रूव योर हेल्थ, है ना। अगर आप हेल्दी हैं तो भी उसको करना जरूरी है। जी जी जी, कीप योर बॉडी हेल्दी, नहीं, तो नहीं, एक्सरसाइज तो करना ही करना है। ऑफ कोर्स। Dr. Parveen, don't you think that elderly people should sit as more as possible on the chair rather than sitting on the sofa? Sofa में बैठने से वो posture relax बिल्कुल हो जाता है, तो वो पूरा posture खराब हो जाता है। I think बिल्कुल They ठीक बात है आपकी। try their level best to sit on the straight chair, the straight back. वेरी नाइस, That helps. दैट इज ट्रू। स्ट्रेट चेयर की आशा, गुड इन्फॉर्मेशन। हाँ स्ट्रेट जी। चेयर पे मर्द बैठे हैं स्कूल में टीचर बन के, अब तो सोफे पे बैठने दो थोड़े दिन। फिर वो posture खराब हो जाएगा ना। फिर एक चीज हो सकती है, या तो posture खराब होगा या तो नहीं तो इमोहा आराम में करेंगे। इमोहा ज्यादा में आराम मत तीन करिए। घंटे बैठते हैं। बॉडी को ज्यादा आराम मत दीजिए इतना। अच्छा, 3 हाँ जी। घंटे ये भी तो बैठते हैं चेयर में। हाँ, चेयर पे बैठो ज्यादा, स्ट्रेट चेयर, पीछे बैक स्ट्रेट रखो अपनी, ऑफ कोर्स। सोफा पे कम बैठो। पीछे फटा डॉक्टर परवीन, ठीक। राइट, सोफे पे बैठने से कमर दर्द होती है। जब सोफे में Right, बैठना हो तो सोफे पे लेट जाओ। कमर दर्द होती है सोफे पे बैठते नहीं है, बैठे रहते हैं सोफे पे। सोफे पर बैठना इज नॉट गुड। हाँ, डॉक्टर परवीन, आई हैव अ क्वेश्चन। आगे झुकना पड़ता है उसमें। आप सीधे नहीं बैठ सकते। जो आराम मिलता है जिंदगी में वो लो। सोफे में बैठना है तो पीछे कुशन का रख लो अपना, बैक स्ट्रेट बिगड़ जाता है, उससे सीधा रहेगा। कुशन रखिए, फिर बैठने में भी तकलीफ होती है। डॉक्टर परवेज, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछिए। मुझको ना आलती पालती मार के बैठना बहुत कंफर्टेबल लगता है, हम्म। और कई बार आप लोग कहते हैं कि नो दैट्स नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैंने तो नहीं बोला। हाँ, अनुराग जी ने बोला था कि नहीं आप आलती पालती मार के नहीं बैठिए, तो आई वांट टू नो। मेरे को तो आप, हम तो मार सकते हैं आलती पालती, तो क्यों ना मारे, बताओ। हाँ, यू नो मसल स्टिफ हो जाते हैं जब यूज नहीं करोगे। तो बहुत देर तक बैठना दैट्स मीन कि आपकी जो जॉइंट है और जो मसल्स है वो स्टिफनेस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट।
एंड जब हम उस पोस्चर में नी जॉइंट पे थोड़ा स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस मींस जो आपके कार्टिलेज है उस पे स्ट्रेस आता है, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस यू कैन डिस्ट्रॉय योर नी जॉइंट, मींस जो कार्टिलेज है वो थोड़ा से खराब होने लग जाता है बिकॉज ऑफ दैट। बट कम समय के लिए आई एम सेइंग कि आप बैठ सकते हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू मूव, है ना, वो कैसा भी मूव कर सकते हैं। अगर हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा मूव मत करिए, दैट्स मीन इज रॉन्ग। यू कैन मूव इफ यू आर हेल्दी एंड यू कैन मूव इफ योर बॉडी इज अलाउड टू मूव। ये ठीक बात है ना, इफ योर बॉडी इज अलाउड टू मूव देन मूव। अगर वो माय बॉडी डजंट अलाउ, अगर बॉडी डजंट अलाउ सो यू कैन वर्क, फिर आप उस पे वर्क कर सकते हैं कि उसको कैसे अलाउ करना है। यार जवान थे तब भी नहीं बैठ पाते थे, आलती पालती, अब क्या बुढ़ापे में 80 साल के होने वाले हैं। लगाया फोन, बोलो। ओके, सो इट डजंट मीन कि जब आप जवान थे तो नहीं होता था, अब क्या होगा। इट्स मीन आलती पालती भैया बहुत मुश्किल है। चलो छोड़ो, कोई और बात करो। मोना जी हर थोड़े दिन पे अपनी 1 साल बढ़ा दे। तो प्रॉब्लम होगी। जो बैठ सकते हैं वो बैठते रहे, जो नहीं बैठ सकते वो ना बैठे। बात है सिंपल, राइट, ही इज राइट। डॉक्टर परवेज, कभी कभी ऐसे लगता है कि वो जो टांग आपने मोड़ी है 2 मिनट के लिए दर्द होती है, बट इफ यू कीप ऑन सिटिंग लाइक दिस, थोड़ी देर तो आपके जो मसल्स होते हैं वो काम करने लगते हैं। अदरवाइज क्या सीधी टांग रखोगे, वो हमेशा के लिए सीधी रह जाएगी, वो टेढ़ी होती नहीं है। अच्छा तो भैया ऐसे करेंगे, फिर आज से मोड़ेंगे अपना घुटना। थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हमेशा रखना चाहिए, नहीं तो मसल्स डेड हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू परवेज, डॉक्टर परवेज एंड प्रवीण, थैंक यू डॉक्टर परवीन। मोना जी की हर थोड़े दिन पे मोना जी की उम्र बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच। ओके, सो डॉक्टर अनुराग, इफ यू आर हियर, हाँ जी, डॉक्टर परवेज, वेरी नाइस। थैंक यू जी।